Okay, guys. So today we will do some more questions of maxima and minima of two variables. Yesterday we have talked about the necessary and sufficient conditions of maxima and minima of functions of two variables, and I think one question we have done in the last class. And I hope you revised all the things of yesterday's class. So I think we should do more questions of maxima and minima of functions of two variables. So I hope this slide is visible to everyone. Can anybody tell me it's visible or not? Yes, Visible, sir. sir. Sir, Okay, Yes, sir. okay, okay. So this was the necessary and sufficient conditions for finding any maxima and minima of functions of two variables and corresponding maximum and minimum values of the function, right? And we have done this question in last class. और मैंने आपको बताया था कि we have to find out the most important thing is that we have to find out the critical or stationary points after equating del f upon del x and del f upon del y 0. It's very important to find out critical and stationary points, and keep in mind one thing that these critical and stationary points must satisfy both the equations. These critical or stationary points should satisfy or must satisfy these two equations, del f upon del x is 0 and del f upon del y is 0. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी के रिगार्डिंग कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग पेन और पेपर अपने साथ लेके बैठा कीजिए। While you are taking the mathematics class, please keep a pen and paper with you. So the question is, examine the extrema of the function f of xy is equal to x square plus xy plus y square plus 1 upon x plus 1 upon y. एक्सट्रीमा का मतलब वही होता है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। Okay? So it's a two variable function. You can see. First find del f upon del x and del f upon del y. X square plus x square plus y square plus 1 upon x plus 1 upon y. So first find del f upon del x and del f upon del y. So del f upon del x means the partial differentiation of f with respect to x taking y as a constant, and del f upon del y means the partial differentiation of f with respect to y taking x as a constant. तो ये तो सबको आता ही है। So del f upon del x will be this 2x plus y 0 minus 1 upon x square and 0. And del f upon del y 0 x 2y 0 minus 1 upon x. So this is del f upon del x and this is del f upon del y. लगे हाथ हम आर एस टी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज आर दैट स्क्वायर एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज एस दैट स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड दिस इज टी दैट स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इजी है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए तो ये टू हो गया, ये जीरो हो गया और ये प्लस टू अपॉन एक्स टू हो गया। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मतलब है या तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में एक बार कर दीजिए या फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार कर दीजिए।
जो कि मैंने आपको बताया था, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिखिए या डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स लिखिए, एक के बाद। So for del square f upon del x del y, you just differentiate del f upon del x with respect to y or del f upon del y with respect to x. It's your choice. तो जैसे हम del f upon del x को y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमें 1 मिलेगी, तो फिर इसका जीरो हो जाएगा। या फिर del f upon del y का हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो भी 1 मिलेगा, तो भी इसका जीरो हो जाएगा। So del square f upon del x del y is equal to del square f upon del y del x. कुछ भी कैलकुलेट कीजिए 1। So s is 1, r is 2 plus 2 upon x cube, s is 1, del square f upon del y square, मतलब del f upon del y का एक बार और y का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये प्लस 2 upon y cube हो गया। So this is r, s and t। अब हम del f upon del x और del f upon del y को 0 पुट करते हैं। So for obtaining critical or stationary points, we should equate del f upon del x and del f upon del y 0, and then the 0 put करिए। इसका मतलब 2x plus y minus 1 upon x square is 0 and x plus 2y minus 1 upon y square is 0, equation 1 and equation 2। अब मुझे कोई बताएगा कि कैसे हमें क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना है? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू ले लेंगे, उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे सारे टर्म। अगर आप सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू लेंगे इन टर्म्स ऑफ y और उसको Yes, फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो एक बार आप कॉपी में कैलकुलेट कीजिए। मेरे पास यहाँ पे कॉपी, मैं भी कैलकुलेट कर देता हूँ, आप सब लोग कीजिए, देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, तो x का वैल्यू हो गया y स्क्वायर माइनस 2y, that is 1 minus 2y divided by y square। इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, 1 minus 2y divided by x, 1 minus 2y divided by y square is 2x plus 1 minus 1 x square to the power 1 minus 2y plus square plus 2। आपको नहीं लगता है बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगा? जिसने भी बताया था, आपको नहीं लग रहा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट? yes sir। यस। एनी अदर ऑप्शन? Sir, in first case we put y is equal to 0 and find x, and in second case x is equal to 0 and we find y. ये किसने बोला आपको? ये कौन सा तरीका होगा? ये कौन सा मेथड आ गया है? सर वो मान सकते हैं ना हम लोग कि सर y is equal to 0। ऐसे कैसे मान सकते हैं? अगर आपने y इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब एक स्टेशनरी पॉइंट जो बना उसमें y इज इक्वल टू 0 आ गया। हाँ, नो सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। नो, सर एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इससे वो प्लस माइनस वाला सर। जैसे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से, वैसे करके। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, इट्स योर चॉइस। देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड किया है, तो जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो 2x माइनस एक्स, ये तो x होगी, y माइनस 2y माइनस y होगी, और 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 0। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए या सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। नाउ x माइनस वाई एज इट इज, लास्ट दो टर्म का एडिशन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आप देखिए
या तो ये एलशियम ले लीजिए और x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस वाई कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या करेंगे? पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलशियम ले लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, मतलब इसके बाद में जो बनेगा वो हम लिखते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलशियम ले लेते हैं तो हमारा बनेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो ये बनेगा एलशियम के बाद में, ये तो जीरो की तरफ शिफ्ट हो गया। न्यूमरेटर में जो बचा उसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, ये एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई को कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन। अब देखिए ये जो सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। दिस कैन नॉट बी सॉल्व, और अगर आपने सॉल्व भी कर दिया तो यू विल गेट इमेजिनरी वैल्यूज, तो दिस इज मीनिंगलेस फॉर अस। So what it means? It means x minus y is equal to 0, that is x is equal to 1, given by equation. Any doubt? अब ये जो x इज इक्वल टू वाई रिजल्ट निकल के आया है, तो इसको आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी एक में पुट कर दीजिए, तो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकल जाएंगे, जिसमें इच्छा हो उसमें पुट करो x इज इक्वल टू वाई। तो इक्वेशन 1 में मान लिया हमने पुट कर दिया, देखिए मैं पुट करके बताया, x इज इक्वल टू वाई का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो इस y की जगह x हो गया तो 2x प्लस एक्स 3x हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो अपना बन जाएगा 3x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 1, राइट? और 3x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब 3x क्यूब इज इक्वल टू 1। वैसे तो 3x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के 3 रूट्स होते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन उनमें से 2 रूट तो इमेजनरी होंगे जिनका कोई मतलब नहीं है। तो रियल रूट कौन सा होगा? वो होगा 3x क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट इज x क्यूब इज इक्वल टू 1/3, दैट इज x इज इक्वल टू 1/3 रेज टू द पावर 1/3। तो x का वैल्यू आ गया 1/3 रेज टू द पावर 1/3। Since x is equal to y, so y का वैल्यू भी ये वाला ले लिया। तो हमारा एक ही स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, वो बनेगा 1/3 रेज टू द पावर 1/3, 1/3 रेज टू द पावर 1/3। दिस इज द ओनली स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। x का वैल्यू भी 1/3 रेज टू द पावर 1/3 और y का वैल्यू भी 1/3 रेज टू द पावर 1/3। There is only one and only one critical or stationary point. बस अब ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है, मिनिमा है या सैडल पॉइंट है, इसको चेक करने के लिए आप आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू इस पर कैलकुलेट कर लीजिए। आर टी और एस का वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। ये देखिए, ये आर का वैल्यू है, ये एस का वैल्यू है, ये टी का वैल्यू। तो सिंपल कैलकुलेशन होगी, आप आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया मिनिमम। दिस पॉइंट इज मिनिमम। इसका मतलब अगर आप इसको फंक्शन में पुट कर दें
तो आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मिनिमा को जब आपने फंक्शन में पुट किया, फंक्शन का मतलब क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन था उसमें पुट किया, तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल गई 3⁴। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसा कोई बंदा है जिसको प्रॉब्लम है, कोई नहीं कर पाएगा कैलकुलेट, तो मुझे बताइए, मैं समझा देता हूँ। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? This is minima, and we can find the minimum value of the function after putting this minima into that function. That is, at x is equal to 1 by 3 raised to the power 1 by 3, and y is equal to 1 by 3 raised to the power 4. The value of the function will be 3 raised to the power 4. This is minimum value of the function. Any question? तो ऐसे आपको जुगाड़ बिठा के सॉल्व करना है। Am I audible? Yes, sir. ऐसे आपको del f upon del x is equal to 0, del f upon del y is equal to 0 की जो इक्वेशन आई है, उनको जुगाड़ बिठा के सॉल्व करना पड़ेगा और क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और वो क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दूसरी को नहीं कर रहे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ यू डोंट नो एनीथिंग। It's a very, very important question, very important and very interesting question. कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जरूरत पड़ेगी तो। It's a very important question. Find the maximum and minimum values of the function f(x,y) is equal to sin x, sin y, sin x plus y. Sin x, sin y, sin x plus y, and keep in mind one thing: x and y both lies between 0 to pi. x और y दोनों का वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही एडमिसिबल है, इसके बाहर एडमिसिबल नहीं। फंक्शन इज f of x y is equal to sin x, sin y, sin x plus y, and x and y both lies between 0 to pi. In fact, x and y must not equal to 0 and pi. 0 और पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। ओके, सबसे पहले del f upon del x, मतलब हमें y को कांस्टेंट एज्यूम करके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो sin y कांस्टेंट हो जाएगा, तो sin y एज इट इज हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन आपको करना होगा sin x प्लस y का, और वो करेंगे प्रोडक्ट रूल से। sin y तो बाहर कांस्टेंट रखिए, sin y ये तो बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें? sin x और sin x प्लस y का, और वो भी प्रोडक्ट रूल से। तो पहले sin x एज इट इज, sin x प्लस y का डिफरेंशिएशन cos x प्लस y, फिर cos x प्लस y के बाद इस x प्लस y का भी होगा, इस x प्लस y का हो गया 1 प्लस 0, दैट इज 1, प्लस अब sin x प्लस y एज इट इज, और इस sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ऐसे आपको del f upon del x, और आप देख सकते हैं कि sin x cos x प्लस y प्लस cos x sin x प्लस y, इसको आप sin a प्लस b के वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं, क्योंकि sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b।
तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये हो गया साइन ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई, मतलब साइन 2x प्लस वाई, और ये वाला साइन वाई एज इट इज, ये आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है। एनी डाउट इन डेल एफ अपॉन डेल एक्स? No, sir. Similarly, if you want to differentiate this f with respect to y partially taking x as a constant, तो आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। x को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो sin x को कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिएगा, sin x बाहर आ जाएगा, sin x बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया। और डिफरेंशिएशन हम करेंगे sin y sin x प्लस y प्रोडक्ट रूल विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। कैसे करेंगे? sin y एज इट इज sin x प्लस y का cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y एज इट इज और sin y का cos y। इसमें ये sin x बाहर वाला एज इट इज रहने दीजिए और अंदर वापस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा दीजिए, sin y cos x प्लस y प्लस cos y sin x प्लस y, इसका मतलब sin a प्लस b, मतलब sin y प्लस x प्लस y, दैट इज sin 2y प्लस x। तो आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई हो गया sin x प्लस 2y। दिस इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई सेपरेट। ठीक है, अब नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो पुट करना है, कर दे। अच्छा, लगे हाथ इसने डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को निकाल दिया, ये आप खुद कीजिएगा, ये कैलकुलेशन कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछिएगा। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया आर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो गया एस। ध्यान रखना इनमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाई गई है, जैसे ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू बेटी ये वाला आ रहा है sin y cos 2x प्लस y प्लस cos y sin 2x प्लस y, तो उसमें sin a प्लस b का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का ध्यान रखना। और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये आपका हो गया, आर एस टी को हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, अब हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो पुट करेंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो पुट करेंगे फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो पुट किया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो पुट करने का मतलब है साइन वाई साइन 2x प्लस वाई जीरो, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल एक्स यही वैल्यू है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो पुट करने का मतलब है साइन एक्स प्लस 2y जीरो। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें जो क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स मिले वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। कैसे करेंगे? देखिए, 1 बाई 1 करके दिया हुआ है, इसका इवैल्यूएशन ये वाला है और इसका इवैल्यूएशन ये वाला है। साइन वाई साइन 2x प्लस वाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिए, तो जो 2 से डिवाइड करेंगे वो तो ये भी बनेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में बनेगा ये 2 साइन वाई साइन 2x प्लस वाई। और आपको पता होगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद है किसी को? यस सर। एक बार बताएंगे आप मुझे, 2 साइन ए साइन बी बताइए, बताइए। सर कॉस होगा पहले, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी या कॉस बी माइनस? ठीक है, कॉस ए माइनस, ठीक है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड आपको दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होते ही बनेगा 2 sin y sin 2x प्लस वाई। इसमें 2 sin में sin b का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा cos a माइनस बी, मतलब cos y माइनस 2x माइनस वाई, मतलब माइनस 2x। cos माइनस 2x का वैल्यू cos 2x होता है, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू cos ऑफ थीटा होता है। सबको पता होगा, पता है ना सबको, cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा होता है। प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो cos 2x माइनस cos a प्लस b, cos a प्लस b कर दीजिए, y प्लस 2x प्लस वाई, दैट इज 2x प्लस 2y, यस करेक्ट, इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन में भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए और यही फॉर्मूला लगाइए तो आपको मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ cos 2y माइनस cos 2x प्लस 2y। यहाँ तो कोई डाउट हो बताइए। अब देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन, यस एनी डाउट एनीबॉडी? सर ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? सर ये आपने बोला ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आप फिर से ये लाइन थोड़ा रिपीट कर दीजिए। देखिए, आप sin y sin 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को और sin x sin x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो डिविजन वाला पार्ट भी गिवन है वहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin y sin 2x प्लस वाई बनेगा। उसमें आप 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो cos a माइनस बी, a यहाँ पे y हो गया, b यहाँ पे 2x प्लस वाई हो गया, a यहाँ पे x हो गया, b यहाँ पे x प्लस 2y हो गया। अप्लाई कर दीजिए, a माइनस बी करेंगे तो cos 2x आ जाएगा, a प्लस बी करेंगे तो 2x प्लस 2y आ जाएगा। सिमिलरली इधर a माइनस बी करेंगे तो 2y आ जाएगा और a प्लस बी करेंगे तो 2x प्लस 2y। डाउट्स क्लियर? ओके सर। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को आप जब जीरो कर रहे हैं तो ये 2 तो जीरो की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 जीरो की तरफ शिफ्ट होगी। आपका बचेगा cos 2x माइनस cos 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, cos 2x माइनस cos 2x प्लस 2y इज 0। और सेकेंड वाली इक्वेशन से बचेगा cos 2y माइनस cos 2x प्लस 2y इज 0, cos 2y माइनस cos 2x प्लस 2y इज 0। इक्वेशन 1 है। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 में सेकंड वाला टर्म सेम है। इसका मतलब हम अगर इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट कर दें या फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो सेकंड वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया हमने, या सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, तो हमें मिलेगा फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर cos 2x माइनस cos 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेकंड टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो cos 2x माइनस cos 2y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब cos 2x इज इक्वल टू cos 2y। राइट? अब cos 2x इज इक्वल टू cos 2y अगर कर रहे हैं, सर फर्स्ट को सेकंड से माइनस किए ना? फर्स्ट को सेकंड से कर दीजिए या सेकंड को फर्स्ट से कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है सर। तो आपको क्या मिलेगा, cos 2x माइनस cos 2y इज 0, दैट इज cos 2x इज इक्वल टू cos 2y। अच्छा, cos 2x ये इक्वेशन इससे पहले बनेगा cos 2x माइनस cos 2y इज इक्वल टू,
अब मुझे कोई बताएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए हमें? कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला याद है किसी को? एनीबडी? यस सर, यस, बताइए। cos A cos B प्लस sin A sin B। नो नो नो, कॉस ए प्लस बी का नहीं पूछना है। सर मैं cos आपसे A माइनस B का। नहीं नहीं, कॉस ए माइनस कॉस बी का पूछ रहा हूँ। सर याद है किसी को? -2 sin A plus B by 2 sin A minus B by 2। अब बोलिए, माइनस माइनस सर माइनस नहीं आएगा शायद, हाँ 2 sin A plus B by 2 sin A minus B by 2। 2 साइन A plus B by 2 ए प्लस बी बाई 2 sin A minus B by 2। साइन ए माइनस बी बाई 2, श्योर, या साइन बी माइनस ए बाई 2? नहीं सर, साइन बी माइनस ए बाई 2। हाँ सर, फिर माइनस आगे आ जाएगा, वो तो A minus B by 2। हाँ सर सॉरी। साइन बी माइनस ए। ओ, साइन वाला भूल गया मैं। बेस्ट से 2 sin a plus b by 2। इसलिए बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज काफी काम आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो cos 2x माइनस, मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड किया था, तो cos 2x माइनस cos 2y इज इक्वल टू 0 मिला। तो इसमें मैं cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाया तो बनेगा 2 sin a प्लस b बाई 2। मतलब a का मतलब 2x हो गया, b का मतलब 2y हो गया, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बाई 2, दैट इज x प्लस 1। ओके, और b माइनस a बाई 2 मतलब 2y माइनस 2x बाई 2, दैट इज y माइनस x। ठीक है, तो क्या बनेगा इस इक्वेशन के बाद में? ये बनेगा 2 sin x प्लस 1 sin y माइनस x इक्वल टू। अब इसका मतलब ये हुआ कि साइन x प्लस वाई जीरो और साइन y माइनस एक्स जीरो। तो अगर साइन x प्लस वाई को हम जीरो करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी आएगी साइन x प्लस वाई जीरो, इसका मतलब x प्लस वाई जीरो, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस वन। और साइन y माइनस एक्स को जीरो करते हैं तो इसका मतलब y माइनस एक्स इज जीरो, तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी y x इज इक्वल टू 1। ओके, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि इसके कारण देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कारण ये फंक्शन पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने x प्लस वाई को जीरो कर दिया, यानी x इज इक्वल टू माइनस वाई कर दिया, तो इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। मतलब फंक्शन कुछ था ही नहीं, मतलब क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, इसलिए x प्लस वाई जीरो नहीं हो सकता। मतलब x इज इक्वल टू माइनस वाई एडमिसिबल नहीं है। इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई। तो cos 2x माइनस cos 2y इज इक्वल टू 0 करने पर हमें मिल गया x इज इक्वल टू y। एनी डाउट?
Any question, any doubt? तो स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट निकालना ही सबसे भारी काम है, क्योंकि उसके बाद में आर टी माइनस एस स्क्वायर को कैलकुलेट करके मैक्सिमा मिनिमा वगैरह सब फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो तो कैलकुलेटिव पार्ट है, तो खास है। एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है। अब इस एक्स इज इक्वल टू वाई को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो y का वैल्यू एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो क्या बनेगा cos 2x माइनस cos 2x प्लस 2x, दैट इज cos 2x माइनस cos 4x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू y पुट कर दिया इक्वेशन 1 की किसी में। cos 2x माइनस cos 4x इज इक्वल टू 0 में वापस cos a माइनस cos b का फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया है, 2 sin a प्लस b बाई 2 sin b माइनस a बाई 2 अप्लाई किया, तो हमें मिल गया 2 sin 3x sin x इज इक्वल टू 0। 2 sin x sin 3x is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ, हमें क्या मिला, 2 sin x sin 3x is equal to 0। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाय डिफॉल्ट 0 हो गया, इसका मतलब sin x 0 हो गया, sin 3x 0 हो गया। अब sin x 0 होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकती है, माइनस पाई भी हो सकती है, माइनस 2 पाई भी हो सकती है, माइनस 3 पाई भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है आपको बताइए। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच sin x इज 0। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी एक चीज़ गिवन है कि x और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई के बीच में ही लेना है। क्वेश्चन में गिवन है, इवन हमें 0 और पाई भी नहीं, ओके। इसका मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 0 और 0 को हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि 0 और पाई के बीच में, मतलब पाई एडमिसिबल है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहूँगा, क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक है, 0 एडमिसिबल है, यानी x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है बट लेस देन पाई। x एंड y ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है बट लेस देन पाई, इट्स अ मिस्टेक। तो उस केस में यहाँ लिख देता हूँ वापस में, x एंड y ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है बट लेस देन पाई। तो sin x को 0 किया तो हमारे पास x की वैल्यूज आएगी 0 पाई 2 पाई 3 पाई, लेकिन हम सिर्फ 0 ले सकते हैं। sin 3x को 0 किया तो sin 3x को 0 करने पर 3x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, 3x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 3x की वैल्यू पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकती है। तो 3x की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू 0 होगी, 3x की वैल्यू जब पाई है तब x की वैल्यू पाई बाई 3 होगी, और 3x की वैल्यू जब 2 पाई है तो x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 होगी। तो ओवरऑल x की वैल्यूज आ गई 0, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, जो कि एडमिसिबल है। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास, लेकिन ये 3 वैल्यूज ही एडमिसिबल है, क्योंकि x की वैल्यूज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है बट लेस देन पाई। और आपको पता ही है x इज इक्वल टू वाई, अभी हमने प्रूव किया है। इसका मतलब x का वैल्यू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू भी 0 होगा, x का वैल्यू पाई बाई 3 होगा तो y का वैल्यू भी पाई बाई 3 होगा, और x का वैल्यू 2 पाई बाई 3 होगा तो y का वैल्यू भी 2 पाई बाई 3 होगा। So these are critical points for stationary. Any doubt? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। 0, 0, pi by 3, pi by 3, and 2 pi by 3, 2 pi by 3 are the critical points of stationary points. Any doubt? Anybody?
अब हमें इन 3 पॉइंट्स को चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है और कौन सा नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कैसे तो पहले सबसे पहले 0 पॉइंट को चेक किया, उस पर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0 आ रहा है। आप आर टी माइनस एस स्क्वायर हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, आर को, एस को, टी को, तीनों को कैलकुलेट कर चुके हैं। उनमें 0 डालेंगे तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0 है। और जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब द टेस्ट इज फेल्ड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। मतलब ये 0 पता नहीं है क्या है, इट्स अनडिसाइडेड। तो पॉइंट 0 is undecided. Now check pi by 3 comma pi by 3. pi by 3 comma pi by 3 पर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और आर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। और जब आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आता है और आर का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट होता है मैक्सिमम। सो पाई बाई 3 comma pi by 3 इज मैक्सिमम। मतलब अगर आप पाई बाई 3 को पाई बाई 3 फंक्शन में पुट कर दोगे मेन फंक्शन में, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाएगी। सिमिलरली ये देखिए, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम है पाई बाई 3 को पाई बाई 3 पे, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गई 3√3 अपॉन 8 after putting x is equal to pi by 3 and y is equal to pi by 3 in the given function. The maximum value will be 3√3 upon 8. अब थर्ड पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है 2 pi by 3 2 pi by 3। 2 pi by 3 2 pi by 3 पे आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है और आर भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट हो गया हमारा मिनिमा। सो इट्स मिनिमा, मतलब फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 pi by 3 2 pi by 3 पे होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा आप पुट कर दीजिए इसको और फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इट विल बी -√3 अपॉन -3√3 अपॉन 8। So 3√3 upon 8 is the maximum value of the function after putting maxima, which is pi by 3 pi by 3, and minus 3√3 upon 8 is the minimum value of the function after putting the minima, which is 2 pi by 3 2 pi. Any question? Guys, am I audible? यस सर। यस सर। Yes, समझ में आया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन गया है इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को काम में लेके हमने इसको सॉल्व किया। द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट क्रिटिकल एंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन। बाद में तो क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट्स को जस्ट पुट करके पता करना है कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमम है। If anybody has any doubt, please ask. सर Yes. वैसे आपने जो करवाया वो तो समझ में आया, बट एक बहुत सिली क्वेश्चन है, पता नहीं सेंस है या नहीं। वो जो हमने वेरी फर्स्ट इक्वेशन निकाला था ना, sin x और sin 2x प्लस x इक्वल्स टू 0, जहाँ से हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सर वहां से भी तो हम x और y की वैल्यू वैसे निकाल सकते थे ना, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। अगर हम लोग उस इक्वेशन से sin 2x प्लस x को अगर
लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो हमारा आएगा साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो वहां से हम लोग वैसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 0, तो व्हाट्स एक्स योर नेम? इक्वल्स टू 0 हो गया। व्हाट्स योर नेम? दिव्या। दिव्या। ठीक है, देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को प्रेजेंट कर देता हूँ, फिर मुझे बताइए कौन सी स्टेप की आप बात कर रहे हैं। हाँ दीजिए, आप बताइए, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये नो डेल सर, एफ, इसका नेक्स्ट स्लाइड जो था। ठीक है, ये वाला जो हो गया। हाँ, आप बताइए। हाँ सर, यहाँ पे ये जो हमारी सेकंड लाइन है ना, साइन वाई साइन 2x प्लस वाई, तो वहां से सर अगर साइन 2x प्लस वाई को उधर ले जाते हैं तो साइन वाई इक्वल्स टू 0 निकलता है। तो वहां से जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फॉलो करते हैं ना डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए, अगर हम लोग साइन वाई इक्वल्स टू साइन 0 करते हैं तो हमें एक वैल्यू निकल जाती है, एक्स इक्वल्स टू 0। फिर अगर साइन वाई बेटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3 करते हैं तो रुको रुको बेटा, रुको रुको, आप ही बोल रहे हैं कि आपने इस इक्वेशन से फाइंड किया साइन वाई इज जीरो, नंबर वन, एंड नंबर टू साइन टू एक्स प्लस वाई इज जीरो, राइट? आप बताइए। हाँ, तो जैसे यहाँ फर्स्ट वाला जो है ये साइन वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ से भी तो हम लोग एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते बिल्कुल हैं ना। बिल्कुल, यहाँ से नहीं, सिर्फ पहले एक एक बात करो ना। पहले आपने साइन वाई को जीरो पुट किया, इससे आपकी वाई की वैल्यूज आ गई जीरो कॉमा पाई, राइट? यस सर। अब नेक्स्ट वाला, और सर वाई की वैल्यू निकालनी थी तो वो तो वहीं से निकल जाएगी, ये मैं पूछ रही थी। मतलब वैसे तो पता नहीं सेंस है या नहीं, लेकिन ये पे ही डाउट था, ऐसे कर नहीं सकते इसको। नहीं बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि जो भी एक्स वाई की वैल्यूज आएगी वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर ली तो वो तो सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ना, इसको कैसे करेगी? दोनों का दोनों को करना है। हाँ, दोनों का कोलैबोरेशन होना जरूरी है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, फिर इन दोनों को मर्ज करके देखो ये बना है, इन दोनों को मर्ज करके बना ये वाला इक्वेशन, cos 2x इज इक्वल टू cos 2y। ये cos 2x इज इक्वल टू cos 2y जो बना है, ये इन दोनों को मर्ज करके बना है, फर्स्ट माइनस सेकंड करके मतलब या दोनों को सेकंड। कंपेयर करके उसका वैल्यू निकालना है। एग्जैक्टली, दोनों यूज आनी चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस del f upon del x is 0 and del f upon del y is 0। दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए। Got it? यस सर। Any other doubt दिखे? नो सर। मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं? हाँ। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। Anybody? Okay, so maxima and minima of functions of two variable is done from my side. You just practice yourself by taking the questions of any PDF of the book of Higher Engineering Mathematics book. I have uploaded 3 PDFs of the book already in the Google Classroom app. You just get it. You just get the questions from these books of maxima and minima of functions of two variables. And soon I will upload the assignment of maxima and minima of functions of two variables. Thank you very much all of you. Have a good day. थैंक यू सर।